सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सुवारी। चली पीड़ी सोडियां, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, वड योधा बहु पर उपकारी। पुछन सिख अरदास कर, छी महलां तक दर्श निहारी। आगम अगोचर सतगुर बोले, मुख ते सुनहो संसारी। कलयुग पीड़ी सोडियां, निश्चल नीव उसार खलारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी साजी अते नवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी बहुत ही वड्डे भाग हन। अज मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का अवतार दिहाड़ा है 6 जून। और अज दे दिन ही 84 दे घल्लू घारे दे शहीदां दे प्यार विच उन्हां दी याद विच सारी संगत नतमस्तक हो रही है। सो आओ मीरी पीरी दे मालक जिन्हां ने बड़े प्यारे सिद्धांत साडी झोली पाए ने, धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच कुछ समा जुड़ना करिए। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु नानक साहिब दे तख्त दे उत्ते पंजवीं जोत जगा रहे ने। उन्हां दी धर्म सुपत्नी सत्कारयोग माता गंगा जी रब दे भाणे विच रब दी रजा विच रहण वाले बड़ा शांत सुभाਅ, जे ना भी गंगा है ते सुभाअ भी शांत है। घर दे विच वड्डे भरा पिरथी चंद अते उन्हां दी पत्नी दे बोल कबोल बर्दाश्त करने झलने रब दी रजा विच रहना। क्योंकि जदों पिता दी दस्तार गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी दे सीस ते आई, उस समय ईरखा दे विच सड़दे भुजदे कुछ परिवार दे लोग रिश्तेदार आला दुआला सारी वैरी बन गए। वेखो कुदरत दी कला। और गुरु प्यारिओ इत्थे गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने अपने जीवन विचों सानू बड़ी प्यारी गल समझाई है कि रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रै संग सुख बिहात। कदे भुंजे भी सौना पै जाए, कदे रुखी रोटी भी खानी पै जाए, पर उस प्यारे दी याद तुहाडे हिरदे विचों ना विसरे। तुसी जिहड़ा भी कर्म कमाउणा है उहदे वल वेख के कमाओ, बस उहदे नाल तुहाडी बण आवे, फिर दुनिया तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो इस तरह माता गंगा जी ने पुत्र दी कामना मन विच रखदे होए, क्योंकि शरीकां दे मिहणे ताने मां गंगा दे कन्नां विच पैंदे सी। जदों वड्डे भरा पिरथी चंद दी पत्नी वार वार ये गल लोकाचारी विच कहंदी सी कि माल है असाडा, असां है लैना, ना इन्हां दे पुत
ਨਾ ਧੀ ਨਾ ਸਾਕ ਨਾ ਸੈਣਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਆਇਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦਾਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਿਆਸੂ ਭਾਵ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਓ, ਆਪ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਏ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅੰਨ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅੰਨ ਪੀਤਾ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬੰਨੇ, ਗੰਢਾ, ਅਚਾਰ, ਛੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਪਾਈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਆਓ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਆਓ ਆਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛਕਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੰਢਾ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲ ਧਰ ਗਰਜਿਓ ਗਗਨ ਮਹਾਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਗਰਜਿਆ ਆਸਮਾਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋ ਜੋਧਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਬਲ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਸੋਧਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
कि माता जी तुहाडे घर विच अकाल पुरख की किरपा नाल ऐसा बली पुत्र होएगा कि जंग दे मैदान विच दुश्मनां दे सीस आ गंढे की तरह फेर दिया करेगा। बड़ी खुशी हुई माँ गंगा प्रशादा छका के पूरी निरंतर सेवा भाव नाल प्रशादा छका के माता गंगा जी चाई चाई वापस आ गए ते बड़ी खुशी दे नाल गुरु अर्जन देव साहब जी नूं सारी वार्तालाप बयान की। ते गुरु अर्जन देव साहब जी बोले कहंदे गंगा जी जे बाबा बुढ़ा जी ने यह बचन कर दिता अरदास कर दी वो गुरु नानक दे चरनां विच सेवा करते रहे ने। गुरु नानक साहब दीआं खुशियां बेअंत उन्हां ते ने उन्हां दी रसना ते गुरु नानक साहब बोलते ने ते जरूर किरपा होएगी जरूर बख्शिश होएगी। ये बचन गुरु अर्जन देव साहब जी ने अपनी धर्म पत्नी माता गंगा जी नूं कीते। सो इस तरह गुरु प्यारिओ ये अकाल पुरख दीआं रहमतां ने ये अकाल पुरख दीआं बख्शिशां ने। जदों अकाल पुरख रहमत करता है जदों अकाल पुरख बख्शिशां करता है कहंदे उदों रहमतां दा मेघ वरसदा है। फिर वडाली दी धरती ते गुरु अर्जन देव साहब जी दे गृह विखे माँ गंगा दी कुखों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का आगमन होया है। जम्मिया पूत भगत गोबिंद का देखो ये बख्शिशां ने रहमतां ने अज बली गुरु का आगमन होया है। बड़ियां बख्शिशां गुरु नानक दे घर विच वरत रहीआं ने। सारियां संगतां गुरु नानक साहब दे घर विच आके खुशियां मना रहीआं माँ गंगा नूं वधाई दे रहीआं। गुरु नानक दे घर विच खुशियां दा तांता लग्या संगतां वधाइयां दे रहीआं ते वड्डे भरा पिरथी चंद दी हिक ते सप रेंग रहे ने कि ये की हो गया। असीं ते ये सोचदी कि ये बेऔलादी दुनिया तो जाण गए। उन्हां मूर्खां नूं ये ज्ञान नहीं जिहड़ा गुरु आप बेऔलादियां नूं पुत्तर बख्शदा है दातां बख्शदा है उहदे अपने घर विच किस चीज़ की कमी है। इते वडियाइयां ने गुरु नानक दे घर दीआं। जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का आगमन होया ना प्यारिओ देखो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे बचपन तो ही उन्हां ते हमले होने शुरू हो गए। ताया पिरथी चंद ने कोई कसर नहीं छड्डी। दाई दे थणा नूं जहरीला दुध ला के भेजना कि अपना दुध चंगा के जहरीला दुध चंगा के इनू बालक नूं समाप्त कर दे। जिवें आपां सुणदे हां कि श्री कृष्ण अवतार जदों होया द्वापर युग दे विच उदों पूतना अपने अस्तना ते जहर ला के गई सी। सो इस तरह जदों गुरु हरगोबिंद साहब बाल हरगोबिंद साहब नूं गोद विच लैके वो दाई अपना दुध पिलाउण दे लई कोशिश करन लगी ते बालक हरगोबिंद साहब जी ने उच्ची उच्ची रोना शुरू कर दिता। इतने नूं माता गंगा जी ने आके बालक नूं फड़ लिया। वो जहर का असर इन्ना तेज सी कि अपने जहर के असर दे नाल वो दाई उत्थे ही मर गई। उदों अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने रखिया कीती। सो मैं इत्थे बेनती करनी चाहुंदा भी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे उत्ते किन्ने हल्ले होए। इतिहास पढ़ के देखिए गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने अकाल पुरख की टेक लई जबकि वो समर्थ सी। मैं नहीं कहता बाणी कहती है कि भन मथरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हर सारियां शक्तियां दे मालक सी कुल कायनात दे मालक सी। पर उन्होंने अकाल पुरख की टेक लैके उस अकाल पुरख की वडियाई नूं ही प्रगट किया ते सानू भी सिक्ख्या दिती कोई दुख होवे कोई तकलीफ होवे भावें सारे रिश्तेदार भावें सारा संसार तुहाडा वैरी बन जाए तुसी उस सच्चे की टेक तको जदों तुहाडे नाल है फिर तुहाडा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी की दिती हुई सिक्ख्या है। ये सिक्ख्या नूं अमली जामा पहना ही अपने जीवन दे विच अपनाइए। फिर थोड़ा समा लंघदा है फिर एक सुपेरे नूं माया दे के जहरीला सप दे के भेजदा पिरथी चंद विहड़े विच आके सप छड़ दिंदा जिथे बाल हरगोबिंद साहब जी खेड रहे ने। जदों सप नेड़े आया बड़ा काला नाग भारा ते बचपन की उम्र है पातशाह ने अपने हत्थां दे नाल उहदी सिरी नूं फड़ के फेर दिता।
ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। फटाफट आके माँ गंगा ने बाल हरगोबिंद साहब जी नूं चुकिया है। सो इस तरह कई तरह के इतिहास विच प्रकरण आउंदे ने जिथे बेअंत तरीकिਆਂ नाल बाल हरगोबिंद साहब जी नूं मारन दे लई प्रिथी चंद ने बेअंत यतन कीते, पर सारे यतन फेल हो गए, क्योंकि गुरु अर्जन देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का विश्वास अते भरोसा सी, जिहड़ा अटुट भरोसा सी, वो अकाल पुरख ते सी। एक वेरा एक ब्राह्मणा दे पुत्तर नूं जहरीली बर्फी दे के भेजिया ते गुरु प्यारिओ बाल हरगोबिंद साहब जी नूं वो जहरीली बर्फी खिला के मारन दे लई, पर लेकिन वो भी जिहड़ा प्रिथी चंद का जो प्लान सी वो सिरे ना चढ़ सकिया। ब्राह्मण का पुत्र घर आ गया, पेट विच सूल का दर्द उठिया, तड़फ तड़फ के मर गया। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने इस पाप का खंडन किया ते बचन उचारे, कहते लेप न लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कै सूल, हर जन राखै पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ। सो इस तरह पातशाह कहते गुरु का ऐसा प्रताप है, पापी आप ही अपने पाप दे नाल पापी पाप कमांदे करदे हाए हाए अपने पाप दे नाल ही मारिया गया। फिर एक वेरा गुरु साहब जी दे जीवन विच आउंदा है, बालक हरगोबिंद साहब जी नूं चेचक निकल आई। बड़िया ने आके सलाहां दित्तियां, कई गुरु नूं भी अकल देण जांदे ने कि महाराज जी देवी दी पूजा कर लो, माता रानी दी पूजा कर लो जी, बालक ठीक हो जाएगा। महाराज सब दियां गल्लां सुनी जांदे ने ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस अकाल पुरख सच्चे पातशाह जी का आसरा लैंदे उन्हां मूर्खां नूं आख्या भी जिस परमात्मा ने जिस अकाल पुरख ने नूं भेजिया साजिया वो आप ही इहदी रखिया करेगा। गुरु साहब जी ने किरपा की अरदास की शब्द पढ़ के ते सचमुच बालक हरगोबिंद साहब जी की चेचक ठीक हो गई। ते महाराज ने शुकराना किया, नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, भरम गए पूर्ण भई सेव, शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ किरपा तारी। सो इस तरह बालक हरगोबिंद साहब गुरु अर्जन देव साहब जी की रहनुमाई दे विच शस्त्र विद्या, घोड़सवारी और अखरी विद्या के धारनी बनते गए। समा बीतता गया। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने तत्तियां तवियां ते बैठ के शहादत दी। उन्हां दी शहादत तो बाद इशारा कर गए सी वो गुरु हरगोबिंद साहब वल, ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने बड़ी डूंगी विचारधारा दे नाल इस गल नूं विचारिया कि किस तरह गुरु अर्जन देव साहब महाराज शांत सुभाअ दे नाल संत रूप होके धर्म का प्रचार कर रहे सी ते दुष्टां ने उन्हां दे सुभाअ दा फायदा उठा के बड़े बोल कबोल बोल के उन्हां नूं तसीहे दे के शहीद किया है। तां फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उस समय फैसला कर लिया सी ते अगे उन्हां ने फिर आउण वाले समय दे विच तख्त लाया, श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की, मीरी पीरी दियां 2 किरपानां पहनियां, दुष्टां नूं वंगारिया, जालमां नूं सोधिया, जंग लड़े और चंदू दुष्ट पापी दे नक विच नकेल पा के घोड़े दे पिछे बन के उन्होंने घड़ीस घड़ीस के उन्होंने कीते गुनाह की सज़ा दी ते उन्होंने मारिया। सो इस तरह धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां दी उस्तत दे विच बड़े प्यार दे नाल भाई साहब भाई गुरदास जी बड़े सोहणे वचन लिखते हैं, बड़े वीर रसी वचन लिखते हैं। कहंदे 5 प्याले 5 पीर छटम पीर बैठा गुर भारी। ओ 5 पीर गुरु अर्जन देव साहब तक, हुण 6वां पीर 6वां पीर गुरु हरगोबिंद साहब तख्त ते बैठा है। बड़ी शोभा है, बड़ा उच्चा लंबा कद, बड़ा तकड़ा शरीर है, तकड़ा जिस्म है, योद्धियां सूरमियां वाला प्रभाव है, बड़ा भारी गुरु है। अर्जन काया पलट के जदों ध्यान नाल मूरत वल वेखदे आ
ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਲ ਭੰਜਨ, ਦਲਾਂ ਦਾ ਭੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਵੱਡ ਯੋਧਾ, ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 6 ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਿਲਾਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਭਰੋਸਾ, ਸਿੱਖੀ, ਸਿਦਕ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।